Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are also preparing very much well for the upcoming DBT JRF examination as well as examination like CSIR. So, this is the most requested and the most important video as per the life science examination point of view. So, I will discuss today the most important topics which you should cover if you are fighting for any life science examination, because all these topics which I am going to mention is extremely important and so many questions are asked in a very different pattern and in very different ways. So you will get to know that how these questions are framed from a particular topic. So I will request कि आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, पूरा देखिए so that you will be able to learn that how much important a cell biology holds in the life science examination. So stay tuned and hit the like button and subscribe my channel if you find it useful. So in the cell biology examination, these 4 topics are very much important. You can't even skip it if you want to crack any of the life science examination, be it a GATE exam or the DBT JRF or the CSIR examination, which is going to be occur in the month of June or in July first week. So you can see that these 4 topics are so much important in the cell biology section. So we will discuss it, that how many questions and what are the probable questions that are asked from these 4 topics. The first topic is the cell cycle, which is extremely important. You can't even imagine that if you will skip it, how much or how many marks you will lose in the life science examination. Because इससे बहुत सारे questions आते हैं and the questions are very much easy if you will memorize the table regarding the cyclin and the CDK and the various factors associated with the cell cycle regulation and the cell cycle division. So how the questions are framed, I will let you know. So in the cell cycle, different phases are frequently asked, that how many phases are there, in which phase the separation of chromosome occur, in which phase the division occur, in which phase this occur, in which phase that occur. Likewise, questions are asked that the DNA content in which phase is doubled, the DNA content in which phase is just half of the parental chromosome, and also the various cyclins and the CDK responsible for the phase transition, like which are the cyclin and CDK responsible for the mitosis phase, which are the cyclin and CDK of G1 phase. ऑल्सो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें साइक्लिन और सीडीके का ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है कि किस फेज में साइक्लिन और सीडीके का जो कॉम्पोजिशन है पर्टिकुलर मेंशन होता है, कौन सा साइक्लिन कौन सा सीडीके वो कम होता है कि ज़्यादा होता है किस फेज में, इसको ग्राफ के थ्रू डिपिक्ट करता है एंड बहुत सारे स्टेटमेंट दे देता है एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी साइक्लिन सीडीके से आते हैं. और अगर आपने पढ़ा है कि किस फेज में कौन सा साइक्लिन काम करता है तो डेफिनेटली उस फॉर एग्जांपल एस फेज का जो साइक्लिन है वो किसी और फेज में नहीं दिखेगा आपको. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी दिखते हैं. एंड ऑल्सो द क्रोमोसोम नंबर, किस फेज में क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं, हाफ होते हैं. इसके अलावा माइटोसिस एंड मियोसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं एंड इवन द एक्चुअल जो डेफिनेशन होता है माइटोसिस मियोसिस का, उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दी माइटोसिस एंड मियोसिस, ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन से प्रोटीन स्ट्रक्चर जो हैं वो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्पिंडल फाइबर पे. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं क्रोमैटिड पे, क्रोमैटिड के रोल पे, एंड इवन स्पिंडल पे क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रोसोम पे क्वेश्चन आते हैं, और छोटे छोटे कैलकुलेशंस आते हैं दैट हाउ मेनी किनेटोकोर्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन सेल एट माइटोसिस. इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं क्रॉसिंग ओवर पे. मियोसिस के क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस फेज में होता है, फेजेस पे पर्टिकुलरली क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा इवेंट जो है वो किस फेज में होता है. तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं कि किस फेज में होता है. लाइक रिकॉम्बिनेशन जो है इट अकर्स एट विच स्टेज, इसको आपको पता होना चाहिए. क्रॉसिंग ओवर कब होता है, एंड इसके अलावा जो मियोसिस के जो 2 फेजेस होते हैं वो कब होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में क्या डिफरेंस है. तो ये वाले जो क्वेश्चंस है वो सेल साइकिल से पर्टिकुलरली आते हैं. यू कांट स्किप इट. नेक्स्ट जो मेजर पोर्शन है सेल बायोलॉजी का वो है सेल ऑर्गेनील्स.
फुल डिटेल, वो भी किसका, सेलुलर ऑर्गेनील्स का, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। एंड इसके अलावा जो बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं, लाइसोसोम, एंडोसोम, एंड इनका जो ओरिजिन है उस पर क्वेश्चन आता है, हाउ दे आर फॉर्म्ड, एंड ऑल्सो दिस माइन्यूट स्ट्रक्चरल डिटेल, विच ऑर्गेनील इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और विच हैज़ अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, उस पर क्वेश्चन आते हैं। एंड ऑल्सो द specific function of each one of the organelle is asked. इवन जो साइटोस्केलेटन होता है उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड। एंड हमेशा साइटोस्केलेटन को स्किप करना आई विल नेवर रिकमेंड, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि जो साइटोस्केलेटन है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं लाइक एक्टिन, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सब जो है उनका रोल, उनका स्पेसिफिक एग्जाम्पल, उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। इवन CSR के C सेक्शन में उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ गए हैं अगर आप PYQ सॉल्व करेंगे तो। इसके अलावा जो मायोसिन मॉलिक्यूल है उसका फंक्शन पूछा जाता है। एंड ऑल्सो दी डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ आवर सेल, वो भी पूछा जाता है। सेल ऑर्गेनील्स में सेल वॉल को अभी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। सेल वॉल जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल एंड ग्राम नेगेटिव, उसका जो स्ट्रक्चरल फीचर्स है मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव में शॉर्ट्स भी अपलोड किया है। एंड इवन मैंने फ्लैश कार्ड भी डाला था, आप उससे भी देख सकते हैं। तो उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। स्टेनिंग पे क्वेश्चन आते हैं कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव के जो डिफरेंट स्टेनिंग प्रोसीजर है उसमें से क्वेश्चन निकल के आता है। एंड जो सेल वॉल का मेन फंक्शन है, प्लांट सेल वॉल, एनिमल सेल वॉल, क्या डिफरेंस है, तो उस पे क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर इसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस बायोमॉलिक्यूल्स। मेम्ब्रेन की बात करें तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन, किसने डिस्कवर किया था, एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के पहले कितने मॉडल्स थे जो वैलिड थे, और क्या क्या उसमें शॉर्टकमिंग्स निकली और क्या डिस्कवरीज हुई, वो भी उसमें पूछा जाता है। एंड ऑल्सो जो कंपोनेंट है या फिर जो कॉम्पोजिशन है एक मेम्ब्रेन का, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का, उस पे सो मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड लाइक द लिपिड कंटेंट, द प्रोटीन कंटेंट, एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ अ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ लिपिड्स एसोसिएटेड विथ अ मेम्ब्रेन, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो लिपिड्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम इनर लीफलेट टू आउटर लीफलेट, उस पर भी क्वेश्चंस आता है। एंड द एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन एज वेल एज द ग्लाइकोलिपिड इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। एंड जो फैटी एसिड कॉम्पोजिशन होता है मेम्ब्रेन का, उस पर भी क्वेश्चन आता है कि कौन से फैटी एसिड रहते हैं, कौन से ग्लाइकोलिपिड रहते हैं। उसके अलावा फंक्शन, जो लिपिड ट्रांसलोकेटर्स होते हैं उनके फंक्शंस पूछे जाते हैं लाइक दी फ्लिपेजेस और दी स्क्रैम्बलेज एंड दी फ्लॉपेजेस, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। और ग्लाइकोलिपिड जो मेम्ब्रेन्स का होता है वो एक अलग से एक टॉपिक है, उसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। एंड मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ किया जाता है उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो ट्रांसपोर्ट होता है इवन स्मॉल मॉलिक्यूल से लेके लार्जर मॉलिक्यूल्स तक, वो किस तरह से होता है, लाइक द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द पैसिव ट्रांसपोर्ट, या फिर जो चैनल गेटेड ट्रांसपोर्ट होता है उस पर क्वेश्चंस आते हैं। सो ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सेलुलर बायोलॉजी के थे। एंड इसके अलावा जीनोम ऑर्गेनाइजेशन पे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में हाउ DNA इज पैकेज्ड इन अ स्मॉल न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, ये पूछा जाता है। एंड ऑल्सो द DNA इन बैक्टीरिया लाइक द E. coli इज ऑर्गेनाइज्ड एंड केप्ट इन अ स्मॉल सेल, ये भी पूछा जाता है। यानी कि बेसिकली जो इतना लॉन्ग DNA है वो कैसे पैकेज होता है, DNA पैकेजिंग पे क्वेश्चन आता है। हिस्टोन पे, हिस्टोन के स्ट्रक्चर्स पे, अगर आप हिस्टोन टाइप करिए गूगल पे हिस्टोन MCQ तो इतने सारे MCQ निकल के आएंगे। जो हिस्टोन ऑक्टोमर है वो उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा जो हिस्टोन के वेरिएंट्स हैं ह्यूमंस में, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। पूरा हिस्टोन ही एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ऑल्सो हाउ द हिस्टोन, हाउ द DNA इज रैप्ड इनटू द हिस्टोन, कैसे रैप किया जाता है, उस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत सारे। और इसके अलावा जो 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर है उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी मैं टॉपिक्स मेंशन कर रही हूँ, इसके अलावा जो सैटेलाइट DNA है, ट्रांसपोजॉन्स है, रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स है, ये सब पे क्वेश्चंस आते हैं। जो ट्रांसपोजॉन्स है वो जेनेटिक्स में भी आ जाता है,
तो आप वहाँ पे भी इसको कवर आउट कर सकते हैं। लेकिन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन पे जितनी भी चीज़ें पूछी जाती है वो मैंने मेंशन कर ही गए। जो अभी पास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत ज़्यादा जिनका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया जिस टॉपिक का, वो सब मैंने कवर किया है। So we have discussed the important topic or the most probable topics from which the cell biology portion is covered or asked in the examination. So some of the major books, standard books you have to study while preparing for the cell biology section. Like the most frequently used book for the cell biology is the Cooper, that is the Cell a Molecular Approach by Cooper, which is a very easy and very handy book. You will be able to learn each and every topic from the Cooper because it is presented in a very easy and very creative manner through diagrams and through flowcharts. And the next book is Cell and Molecular Biology by Karp, and also some of the portion is well provided in the Molecular Biology of the Cell by Albert, and also Lodish book is also there. So as per your choice you can refer any of the book. एंड आप हमेशा ऐसा किया कीजिए कि सब कुछ एक ही बुक से पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप टॉपिक्स कंपेयर कर लीजिए किस बुक में बहुत ज़्यादा अच्छे से दिया है। हालांकि स्टैंडर्ड बुक है, सभी में बहुत अच्छे से दिया, बट इट डिपेंड्स ऑन आवर कैपेसिटी कि हमें किस बुक से ज़्यादा ईजी मैनर में समझ आ रहा है। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे पर्सनली आई रेफर मोस्ट ऑफ द टॉपिक फ्रॉम द कूपर एंड फ्यू टॉपिक्स लाइक द सेल डिविजन विच इज़ इन एंड द कैंसर टॉपिक विच इज़ इन फुल डिटेल in the cell and molecular biology. So I refer for that topic Karp, and some of the portion I refer Cell, and the Lodish book is also good. You can refer and papers also. हर मेजर बुक्स हैं जिसे आप रेफ़र कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स को कवर करने के लिए। सो इनमें से आपके पास जो भी बुक्स नहीं होंगे यू कैन कमेंट बिलो, आई विल प्रोवाइड द बुक। लाइक द बायोप्रोसेस का बुक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था टेलीग्राम में भी, एंड ऑल्सो मैंने ड्राइव का लिंक दे दिया था, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस वीडियो के नीचे कमेंट में देख लीजिए। सो इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, कूपर की बुक इसलिए भी अच्छी लगती होगी आपको भी एंड मुझे भी, बिकॉज दी प्रेजेंटेशन इज़ वेरी मच ईजी एंड वेरी मच अपीलिंग कि हम उस जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो मेंशन कर रहा है थ्रू दी की पॉइंट्स, थ्रू दी फ्लैश कार्ड्स, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो हमें अपने आप दिखता है और हम उसे पढ़ते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि जो कूपर की बुक है उसमें ये जो वेबसाइट एनिमेशन है, ये सारे हर यूनिट से हर टॉपिक से उन लोगों ने एनिमेशन प्रोवाइड करा है, एंड वो जो एनिमेशन है आप उसे क्लिक करेंगे लिंक पे तो वो बिल्कुल ओपन भी होता है, और इस एनिमेशन से वो इतना एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन है कि आपको वो टॉपिक जितना भी कॉम्प्लेक्स लगेगा वो उस एनिमेशन के थ्रू आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आई पर्सनली फॉलो दोज एनिमेशन टू observe or visualize that what is happening inside a cell. You can check it out, and apart from that the small flashcard like the cancer cell or the puffer fish जो मैंने येलो कलर का जो लगाया है वो हर यूनिट में कूपर में प्रोवाइड किया गया है, एंड मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी बताया था कि दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली उससे क्वेश्चन बनाता है CSR B सेक्शन में एज वेल एज इन C सेक्शन। सो यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन कलेक्ट दोज फ्लैश कार्ड, लाइक जैसे मैं भी कलेक्ट करती हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ हमेशा। तो ये सब जो रिसोर्सेज हैं हर बुक्स में अवेलेबल होती है। मैंने कूपर के एग्जांपल दिया है, कार्प में भी है, जो बॉक्सेस में या अलग से जो आपको इनसेट में दिखता है वो हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, आप हमेशा उसे स्किप करते हैं लेकिन उसे हमेशा पढ़ा कीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आज जो भी टॉपिक्स मैंने मेंशन करे हैं मैं नेक्स्ट वीडियो जो आते जाएंगे अपकमिंग वीडियोज़ उसमें कवर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।